Good morning, students. I am Nivedita Singh, Marwadi College English Department. Today, I am going to take your online class for elective English. As in previous video, we have started from the textbook Woven Words lesson number 2. Today, we will continue with the story A Pair of Mustachios. Class 11th elective English ENG 100 marks textbook Woven Words lesson number 2 A Pair of Mustachios by Mulk Raj Anand. As we have seen in the story how Mulk Raj Anand has described the mustaches and their shapes in India and how they are protective about their categorically mustachios, and he has started a story that happened in his own village where Ramanand stayed, who is a moneylender and a shopkeeper. But he is allowed goat mustache, but he keeps that mustache like tiger mustache. Nobody seems to mind very much because most of the mouse mustache peasants in our village are beholden to the local moneylender, either because they own him interest in loan or an installment or on a mortgage of jewelry or land. Besides, the Seth had been careful enough to twist his mustache so that it seems nearly, though not quite, like a tiger mustache. और विलेज में कोई उनको टोकता भी नहीं था या माइंड भी नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग गरीब थे। किसी ना किसी तरह से वो लोग रामानंद के यहाँ बाउंडेड थे, जैसे कि या तो वो लोगों ने गहने गिरवी रखे थे या ज़मीन गिरवी रखे हुए थे, तो रामानंद को किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी और वो इस तरह से मूंछ को रखते थे जैसे कि टाइगर मुस्टैच हो। लोग देखते भी थे लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। बट देयर लिव्स इन द वेन सिटी ऑफ आवर विलेज एन ओल्ड dilapidated Mughal style house, a Mussulman named Khan Azam Khan, who claims descent from an ancient Afghan family whose heads were noblemen and counselors in the court of the great Mughals. उसी विलेज में एक मुसलमान रहता था जिनका नाम खान आजम खान था, जो कि अपने आप को अफ़गानिस्तान के बताते थे, जो कि उनके पूर्वज मुगलों के दरबार में काउंसलर्स थे। Khan Azam Khan, a tall middle-aged man, is a handsome and dignified person, and he wears a tiger mustache and remains adorned with the faded remnants of gold-braced waistcoat, though he has not even a patch of land left. और वो अपने पास्ट ग्लोरी में ही जीते थे। वो दिखने में बहुत अच्छे थे, मिडल एजेड थे और अपने पास्ट ग्लोरीज में ही जीते थे, जबकि अभी प्रेजेंट में उनके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था। सम पीपल, नोटेबली लैंडलॉर्ड of our village and the moneylender, maliciously say that he is an impostor of and that all his talk about his blue blood is merely the bluff of a rascal. और गांव के कुछ लोग और वो दुकानदार रामानंद सब मिल के बातें करते थे उनके पीठ पीछे कि वो जितने भी बातें करते हैं वो सारा झूठ है, वो कोई बड़े ख़ानदान से नहीं बिलोंग करते थे और वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं जितना कि वो हैं नहीं। Others, like the priest of the temple, concede that his ancestors were certainly attached to the court of the great Mughals, but as a sweepers. और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते थे कि हाँ, वो मुग़ल कोर्ट से ज़रूर जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक स्वीपर के तौर पर, ना कि वहाँ के मिनिस्टर के तौर पे। The landlord, the moneylender, and the priest are manifestly jealous of anyone's long ancestry, however, because they all have raises from nothing.
It is an obvious from the stately ruin around Khan Azam Khan that Grace was once his and his forefathers. और बहुत सारे लोग उनसे जेलस फील करते थे और कहते थे कि जितना वो कहता है उतना वो है नहीं, झूठ बोलता है अपने फैमिली के बारे में। और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। ओनली खान आजम खान्स प्राइड इज ग्रेटली एक्सेस ऑफ हिज प्रेजेंट पोजिशंस एंड ही इज inordinately jealous of his old privileges and rather foolish, headstrong, and safeguarding every sacred brick of the tottering house against vandalism. लेकिन खान आजम खान अपने पास्ट या अपने सिस्टर्स पे बहुत गर्व था। वो अपनी घर की एक एक चीज़ जो भी बचा हुआ है, एक एक ईंट पे वो गर्व करते थे। Khan Azam Khan happened to go to the moneylender shop to pawn his wife's gold nose ring one morning and noticed the upturning tendency of the hair of the Ramanand upper lip, which made the moneylender's goat mustache look like almost his own tiger mustache. एक दिन खान आजम खान सुबह सुबह उनकी वाइफ का गोल्ड नोज रिंग गिरवी रखने के लिए जाते हैं रमानंद के पास, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि उनका गोट मुस्टैच जो है वो टाइगर मुस्टैच यानी कि खान आजम खान की मुस्टैच की तरह स्टाइल किया हुआ है। सिंस व्हेन हैव द लेंटिन ईटिंग शॉपकीपर्स बिकम नोबल मैन, ही आस्क्ड सीरियसली। वो गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि कब ये छोटे लोग बड़े लोगों की तरह मूछ रखने का अलाउड हो गया है। आई डू नॉट नो वॉट यू मीन खान, रमानंद आंसर। तो रमानंद कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। यू नो वॉट आई मीन, सीड ऑफ डंकी सेड द खान, लुक एट द वे यू हैव टर्न अप द टिप ऑफ योर मुस्टैच अपवर्ड्स, इट ऑलमोस्ट लुक लाइक माई टाइगर मुस्टैच, टर्न द टिप डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर, फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल नाउ डेज। और गुस्से में वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने क्या कहा है, और तुमने जो अपना मुस्टैच टाइगर मुस्टैच की तरह किया हुआ है उसको गोट मुस्टैच की तरह करो और उसे नीचे उतारो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो कोई चीज़ का ध्यान नहीं रखते। ओ खान, डोंट गेट सो एक्साइटेड, सेड द मनी लैंडर हु वॉज नथिंग इफ ही वॉज not unamiable, having built up his business on the maximum that the customer is always right. तुरंत रामानंद जो है वो खान को शांत करते हैं, क्योंकि उनकी बोली से ही उन्होंने इतने दिनों से अपने कस्टमर्स को बनाया है। तो तुरंत उनको अपनी बोली से उनको शांत करते हैं। I tell you, turn the tip of your mustache down if you value your life, regard raged खान आजम खान। लेकिन खान आजम खान जो है वो गुस्से में कुछ नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, पहले तुम अपना मुस्टैच नीचे करो अगर तुम अपनी जान प्यारा है तो। इफ दैट इज ऑल द ट्रबल हियर यू आर, सेड रमानंद, ब्रशिंग वन एंड ऑफ हिज मुस्टैच with his only hand and brush it hand so that it dropped like a dead fly. Come, show me the trinkets. How much do you want for them? और वो कहते हैं इतनी सी बात है, लो मैं कर देता हूँ। और उन्होंने अपना मुस्टैच नीचे कर दिया और कहा कि लाओ, क्या लाए हो, देखें उसको और इसमें क्या कितना दे सकते हो। Now that Khan Azam's pride was appeased, he was like soft wax in the merchant's sure hand. His need and the need of his family for food was great, and he humbly accepted the value which the moneylender put on his wife's nose ring. खान आजम भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस समय खाने की अनाज की ज़रूरत थी और उस अनाज से बढ़ के उस समय उनके लिए कुछ नहीं था। और मनी लैंडर ने उनके हाथ पे जो भी पैसा रख दिया उनके लिए बहुत था। बट एज ही वॉज डिपार्टिंग आफ्टर नेगोशिएशन हिज बिजनेस, ही नोटिस दैट दो वन एंड ऑफ द मनी लैंडर मुस्टैच हैड कम डाउन एट
his behest, the other end was still up. जैसे ही अब उन्होंने अपना काम ख़त्म करके जाने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि रमानंद ने सिर्फ मुस्टैच का एक साइड नीचे किया है, दूसरा साइड जो है वो अभी तक ऊपर ही है. Today up to this we will continue in our next class video.